مجھے کیسے لہرے لہرے وہ اڑتا ہوا وہ اٹکیلیاں لیتے ہوئے جا رہا ہے. میرے 50 لاکھ کا ہیرا کھا گیا اور ڈکار بھی نہیں ماری اس نے. 50 لاکھ کا ہیرا کھایا, کم از کم ڈکار تو مارنی چاہیے. تمہیں مزاق سوچے میری جان میں بنی ہوئی ہے. بھائی میاں تم ایسے کرو, دیوار پر چڑھ کے مورچہ بنا لو. باریک تم ادھر سے چلے جاؤ, تم اوپر سے جاؤ. یہ مرغا یہاں سے نہیں جانا چاہیے, میں اسے جان سے مار دوں گا. یہ یاد رکھنا, شیخو کا ایک پر بھی نہیں اترنا چاہیے. تو شیخو میرے ہاتھ میں آ جائے, میں اسے ٹکرے مار مار کے اسے ساری کھالو دیر دوں گا. ہوش کر سیٹ, 50 لاکھ کے پیچھے اندھا ہو گیا ہے. بھائی میاں 50 لاکھ کا ہیرا وہ اندھا بھی نہ ہو. کیا بکواس بس میرے جان میں بنی تم اندھے بہرے بنا رہے ہو. کہیں نہیں جائے گا یہ, یہاں سے بچ کر کہیں نہیں جائے گا, فکر نہ کریں. پولیس کو خبر کر دو, پورے گھر کو گھیرے میں لے لے. ادھر دیکھو ماتا نا شیخو, شیخو یہ وہ نہیں جو آوازیں نکال رہا ہے. شیخو نہ آنا. بڑی مشکل سے پکڑا بھائی میاں. میرے خیال میں صاحب جی کو اطلاع کر دینی چاہیے. بے وقوف, چپ. اس سیٹ کو نہ بتانا, وہ سیٹ میرے شیخو کی جان کا دشمن ہو گیا ہے. باریک, مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے. بھائی میاں میرے پاس تو سارے 3-4 روپے ہیں. ارے جاہل, پیسوں کی نہیں, مجھے تیری زبان بندی کی ضرورت ہے. بس اپنی زبان کو بند رکھنا. اس کے بدلے مجھے کیا ملے گا جی؟ ٹھیک ہے, میں ضرورت مند ہوں. ٹھیک ہے, میں اس کے بدلے میں تمہیں 2 دفعہ ناشتہ کروا دوں. بھائی میاں کیش کی بات کرو, کیش کی. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں شیخو, میں تمہیں پورے 15 روپے دے دوں. 15 روپے؟ 50 لاکھ کا ہیرا ہے بھائی میاں, پورے 100 روپے لوں گا. 100 روپیہ؟ ارے جاہل, اتنی بڑی رقم کہاں رکھے گا؟ کیوں پیسے کے لالچ میں اپنی جان کا دشمن ہو گیا ہے. میں تو 100 روپے لوں گا جی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بلیک میلر. مجھے اپنے شیخو کی جان بچانے کے لیے یہ بھی منظور ہے, مگر یہ یاد رکھنا کسی کو نہیں بتانا. میں اور شیخو تیرے کوارٹر میں چھپے ہوئے. آج رات اندھیرا پھیلتے ہی ہم دونوں یہ بستی چھوڑ جائیں گے. بلیک میلر. اب تو سیٹ صاحب کے سامنے بھی نہیں جا سکتا. شیخو, تو اب ایک مرغا نہیں ہے, تو اب 50 لاکھ روپیہ ہے. ہاں 50 لاکھ سکہ رائے وقت. مگر شیخو یہ سیٹ احمد مشتبہ کے حواری تجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے. شیخو بس تو مجھے نہ چھوڑنا, باقی میں ان سب سے نپٹ لوں گا. شیخو, اس شہر میں تمہارے جان کے دشمن پھیلے ہوئے ہیں. اس سے پہلے کہ تم پہ کوئی آ جائے, شیخو آؤ اس شہر کو چھوڑ جائے. اور شیخو آؤ. خبردار ہلنے کی کوشش کی تو ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گا ڈائریکٹ. سیٹ, یہ دھمکی کسی اور کو دینا, میرا بھی اب اس شہر میں ایک نام ہے, سیٹ مرغے والا. خون خرابے کا کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی میاں. اس مرغے نے ان کا 50 لاکھ کا ہیرا کھایا ہے. اس کے میدے سے یہ ہیرا نکالنا ہی ہوگا, چاہے اس کے لیے ہمیں تمہارے میدے میں گولی مارنی پڑے. ارے ہوش کے نہ ہن لوگ کاشف, یہ کوئی معمولی مرغا نہیں ہے. کس کو دھمکی دے رہے ہو؟
جس کے مرغے اکاؤنٹ میں 50 لاکھ روپیہ ہے؟ اور ویسے بھی میں نے اس کی خوراک بازی پہ، اس کی دیکھ بھال پہ بڑا پیسہ خرچ کیا ہے۔ تو ٹھیک ہے، میں تجھے 50 روپے نقد دیتا ہوں۔ 50 روپے؟ ہاں 50 لاکھ کا انعام؟ صرف 50 روپے؟ بہت ہوتے بیٹا۔ ارے سیٹ، میں یہ مرغا تجھے نہیں دوں گا، یہ یاد رکھنا۔ دیکھو بھائی میاں، یہ آپ کی بہن کو طلاق دے دیں گے، کیا آپ اپنی بہن اور اس کے بچوں کو سنبھال سکتے ہیں؟ نہیں سیٹ، میری بہن کو طلاق نہ دینا سیٹ۔ یہ لے میری کل پونجی تیرے حوالے سیٹ، شکریہ مگر میری بہن کو نہ چھوڑنا۔ مگر سیٹ یہ بات یاد رکھنا، میرا شیخو میری اجازت کے بغیر تجھے 50 لاکھ نہیں لوٹائے گا۔ ارے کیسے نہیں لوٹائے گا؟ ابھی اس کو چیرتے ہیں، اس کا آپریشن کرتے ہیں، اس کے معدے سے 50 لاکھ کا ہیرا نکالتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ۔ آپریشن؟ ہاں شیخو میں نے کہا تھا شیخو تیری جان کو خطرہ ہے، شیخو بھاگ جا۔ بھاگ شیخو، بھاگ شیخو، بھاگ۔ کاشی یہ تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ کہیں کیچڑ میں تو نہیں گر گئے؟ سانس کتنی پھولی ہوئی ہے، کتے تو نہیں پڑ جائیں گے؟ وہ تو دیکھو کیسے سوجا، مجھے تو لگ رہا ہے یہ شہد کی مکھیوں کے چھتے کو چھیڑے سے۔ کتنی بار منع کیا کاشی بیٹے تمہیں، یہ چھیڑخانی بند کر دو۔ کاشی بتاؤ پھر ہوا کیا ہے؟ مرغا بڑا ہی عجیب مرغا ہے، قابو ہی نہیں آ رہا۔ ایک تو مرغا قابو نہیں آ رہا، اوپر سے آپ کے ڈیڈی جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ تو بس ختم۔ کیا کر رہے ہیں؟ بس اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم سب کو بھی بھگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جان جائے مگر مرغا نہ جائے۔ پکڑ کے سانس لیں گے مرغے کو۔ تجھے تیرے بڑوں کا واسطہ، تجھے اپنے حسن کا واسطہ ہے، اے میرے پری پیکر، میرا ہیرا انڈے کی صورت میں واپس کر دے۔ صاحب جی آپ کے علاقے میں مرغے انڈا دیتے ہیں؟ بکواس نہ کر، دعا مانگنے میں کیا حرج ہے، کوئی بھی معجزہ ہو سکتا ہے۔ دیکھ میں خدا کا واسطہ کہہ رہی ہے، دیکھ میں تیری کنتی منتیں کر رہا ہوں، تو دشمنوں کو ہنسا رہا ہے اور مجھے رلا رہا ہے۔ میں دیکھ تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں، تیرے پاؤں پڑتا ہوں، اے بھائی میرے بہن باریک دیکھ رہا ہے تو کتنا بڑا سیٹ ایک ککڑ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے۔ باریک کیا یہ سب امیر لوگ اسی طرح مطلب پرست ہوتے ہیں؟ نہیں بھائی میاں، کوئی آپ جیسے بےحس اور خود غرض بھی ہوتے ہیں جو سب کچھ کھا کر کہتے ہیں میں نے کیا کھایا ہے۔ کیا بکواس کر رہے ہو، میرے ہاتھوں ضائع نہ ہو جانا۔ باریک جی اپنے سیٹ سے کہتے میرا شیخو آج انڈا نہیں دے گا۔ وہ کیوں؟ آج اتوار ہے اور اتوار کو میرا شیخو چھٹی کرتا ہے۔ میں تیرے شیخو کی چھٹی کرا دوں گا، یہ میں بتا دوں، میں اس کی ہڈیوں کا بھی قیمہ بنا دوں گا۔ آہستہ بول، خبردار جو تو نے میرے شیخو کو کچھ کہا۔ اور ایک بات اور سن لے، اس محل کی دیواریں جتنی مرضی اونچی کر لو، میرا یہ شیخو یہ جیل توڑ کے ضرور بھاگے گا۔ بھاگ شیخو، بھاگ شیخو۔ دیکھ شیخو، بھاگنے کی کوشش کی تو میں گولی مار دوں گا، پھر مجھ پر کوئی الزام نہیں آنا چاہیے۔ سر جی گولی نہ چلانا، کیوں؟ ورنہ ہیرا ٹوٹ جائے گا۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کہا بھائی۔ سر جی کب تک اس مرغے کے پیچھے دوڑتے رہیں گے؟ جب تک یہ تھک کے گر نہیں جاتا اور میرا 50 لاکھ کا ہیرا واپس نہیں کر دیتا۔ سر جی میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ آہستہ بات کر، مرغے کے بھی کان ہوتے ہیں،
सर जी आप इस मुर्गे को सारी जिंदगी नहीं पकड़ सकते। तो तेरा क्या मतलब पुलिस फोर्स मंगवा के पूरे घर को घेरे में डलवा लूं, मछेरे को बुला के जाल बिछवा दूं? नहीं सर जी, इस मुर्गे को भाई मियाँ और काशिफ साहब पकड़ सकते हैं। वो कैसे? अगर आप उन्हें ये कह दें कि आपने इस मुर्गे को पकड़ लिया तो आपको 1-1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। 1 लाख? अबे वो 10 रुपए में सांप पकड़ लेते, तू लाख रुपए मुर्गा पकड़ने के लिए दे रहा है? सर जी कहने में क्या हर्ज है, बाद में देखी जाएगी। कहने में क्या हर्ज है, लेकिन वो तो मेरे मुंह में उंगली डाल के पैसे निकलवा लेंगे। चलो खैर, तुम ऐसा करो, मेरी तरफ से 1-1 लाख रुपए की पेशकश करा, और इस खुशी के मौके पर 10 रुपए मैं तुझे भी दूंगा। 10 रुपए सर जी कुछ ज्यादा नहीं है? चलो कोई नहीं, कम कर लीजिए, मजदूरों की तनख्वाह ना कम पड़ जाए। समझेगा ना? चल जाके क्या किया? अच्छा आहिस्ता जाइए। आजा आजा, सबके जाऊं, आजा मेरे चन्नू, मेरे चन्ना, मेरा पन्ना, मेरे मन्नू, मैं तुम्हें चिप्स लेके दूंगा, आइसक्रीम खिलाऊंगा, लॉलीपॉप बनाऊंगा। मेरे चन्ने पन्ने, आजा मेरे भाई जगन, आजा आजा मेरे भैया, आजा आजा आजा। शाबाश, मैंने कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, कुछ नहीं कहना। 1 लाख? ये क्या कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। मैं सच कह रहा हूँ भाई मियाँ, अगर आपने और काशिफ बाबू ने उनका मतलूबा मुर्गा पकड़ लिया और उसमें से हीरा बरामद कर लिया तो सेठ साहब आपको 1-1 लाख रुपए के नए नोट देंगे। चलो मान लिया हमने किसी तरह से अपनी जान पर खेल कर उस मुर्गे को जिंदा या मुर्दा पकड़ भी लिया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो अपने वादे से नहीं फिरेंगे? और अगर वो अपने वादे से फिर गए तो हमारी सारी मेहनत तो गई ना खड्डे में। मामू जान प्लीज आप डैडी की मदद करें ना, इस तरह तो वो उस मुर्गे के पीछे इस तेज धूप में खड़े खड़े सूख जाएंगे। पहले वो कौन सा गूंगा पहलवान है, जिस हाथ में ब्रीफकेस पकड़ ले वो कंधा दूसरे कंधे से 4 इंच नीचे हो जाता है। भाई मियाँ आप पहले दर्जियों का काम करते थे। अगर तुम दोनों उनकी मदद नहीं करोगे तो हो सकता है वो दीवानगी की हद से जुनूनी कैफियत में दाखिल हो जाए। अच्छा ठीक है, हम मुर्गा पकड़ लेते हैं, लेकिन डैडी के लिए नहीं, अपने लाख रुपए के लिए। पैसे दिलवाना आपकी जिम्मेदारी है। हाँ हाँ ठीक है भाई, तुम दोनों का लाख रुपया डन। मैं कह रही हूँ ना, मैं तुम दोनों के पैसे दे दूंगी, चाहे मुझे चोरी करके ना देने पड़े। बस अब मुझे यकीन आ गया है, मेरी बहन ने कह दिया है, अब मुर्गा जरूर पकड़ेगी। बारीक तुम इधर से जाओ, काशिफ तुम इधर से जाओ। जब तुम दोनों मुर्गा पकड़ लो तो मुझे जगा देना। चलिए ना भाई भैया। अब से मोर्चे पे डटे रहिएगा डैडी, आपकी वफादार फौज बमा असलहे के पहुंच गई है। और तू भी सुन ले कमीने घटिया, शाही किले के दरबारी, तूने बहुत दौड़ाया मेरे भाईजान को, अब ना भागना, अब भागने की कोशिश न करना, क्योंकि अब तेरे सर की कीमत 1 लाख रुपया है। भागने की कोशिश न करना, क्योंकि मैंने इस घर का नमक खाया है और अब तुझे खाऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरे जानबाज छापा मारो, वो ना हो कि मेरी रकम उड़ के कहीं और चली जाए। आप फिक्र न करें डैडी, ये कहीं भाग कर नहीं जा सकता। हमने चारों तरफ सख्त नाकाबंदी कर रखी है। और अगर इसने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की तो मेरे वार से नहीं बचेगा। काशिफ आए मियां, अटैक! और मेरे 50 लाख का हीरा लेके वो साथ वाले घर में चला गया। डैडी आहिस्ता करिए, घर वालों ने सुन लिया कि उसके पेट में 50 लाख का हीरा है तो गड़बड़ हो जाएगी, छुपा लेंगे उसे। भाई मियां आप और डैडी अंदर जाइए, मैं और बारीक यहीं पे पहरा देते हैं। भाई मियां ओके। एहतियात। हाँ तुम भी अपना ख्याल कर लो। आप जाएं। Home sweet home, home sweet home, home sweet home. बेगम, इंसान जिस चीज की तमन्ना करता है ऊपर वाला उसकी तमन्ना पूरी कर देता है। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। मेरा आज ही मुर्गा खाने को दिल कर रहा है। ऊपर से
छप्पड़ फाड़ कर तो नहीं दिया, लेकिन अल्लाह ताला ने इस दरवाजे के रास्ते से दे दिया। भाई साहब, भाई जी, बाजी, भाई साहेब, लो आ गए मुर्गी वाले। तुम तो खा लो मुर्गी, रोस्ट बनाकर या कढ़ाई बनाकर। तुम ये मुर्गी को पकड़ो और छुपा दो इसको, बाहर वालों से मैं निपट लूंगा। किसी की ताकत है, किसी की मौत आई है जो मेरे हक पे तो अपना हक जताए। क्या बात है भाई, क्यों शोर विचारक है? वो मोहतरम आपके घर में हमारा शेखू आया है जी। यहाँ कोई बच्चा बच्चा नहीं आया, दौड़ जाओ यहाँ से, चलो। नहीं नहीं, आप हमारा मतलब नहीं समझे। हमारा मुर्गा आपके गेट से दाखिल हुआ, अंदर आ गया। अगर आप इजाजत दें तो हम उसे पकड़ लें। मैंने कह दिया यहाँ कोई मुर्गा नहीं आया, यहाँ से दौड़ जाओ, बस चलो। भाई साहब, हम आपके तकरीबन मोहल्लेदार हैं और मोहल्लेदारी में दुश्मनदारी अच्छी नहीं होती, एक जगह पे एक ही दारी जल सकती है। मुर्गा तो हम वापस ले ही लेंगे, आखिर हम भी शरदाई पीते हैं। मेरा ख्याल है तुम्हारा बंदोबस्त करना पड़ेगा, ये डकैत है महल में। पहलवान जी, हमारी बात सुने। हम ऐसे नहीं, मेरी बात सुने। हमारा बड़ा कीमती मुर्गा में पकड़ने से क्या हो गया? मैंने कह दिया ना यहाँ कोई मुर्गा नहीं आया, मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। चलो दौड़ जाओ यहाँ से, चलो। आ जाओ, चल। मेहरबानी आपकी। मैं कहता हूँ दौड़ जाओ यहाँ से, और अगर पीछे मुड़ के देखा तो हशर कर दूंगा। आ जाते मुर्गा लेने, डकैत चोर कहीं के। मेरे बच्चे, मेरे शेखू कोई बुरी बुरी नजरों से देख रहा है, क्यों नहीं देख रहा? तेरा गर्फ इस मुर्गे का सारे घर का सत्यानाश करके रख दिया। बेगम, तुम उसे बददुआ ना दो, उसके बैंक में मेरा 50 लाख का हीरा है। अच्छा नहीं, उस जालिमों ने उसे नाश्ता दिया होगा, ये क्या सलूक किया होगा। कैसे बेटे, उसका सोचे मतलब पता चला। डैडी कहाँ जा रहे हैं? आपको इतना तेज बुखार है। कहीं नहीं जा रहा, वो ऊपर जाने की बात कर रहा है। इस हालत में क्या क्रिकेट खेलने जाएगा? तू जबान ना निकाल, मैं बता दूं। भाई मियाँ, खुदा के वास्ते मुझे कुछ सोचने तो दें। काशी भाई, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आप उसको टांग से पकड़ के ले आए। जुनैरा बीबी, इतना आसान होता तो सेठ साहब को बुखार ना होता। काशी प्लीज कुछ करो, डैडी की हालत देख के तो मुझे पसीने आ रहे हैं। तो एसी चला लो। अब भाईजान की दवाई तो मुर्गे के पास है। भाई मियाँ, आप चुप नहीं हो सकते, कुछ सोचने तो दें, खुदा का वास्ता। अरे तुम्हारे सोचने में हमारा शेखू के न्याज साहब की पति नहीं बिना चला। शेखू, मेरे बच्चे, तुम्हें किसी की ना है, तुम्हारी आई भाई मियाँ को आ जाए, तुम्हें गर्म हवा ना लगे। खुदा का वास्ता है, जरा सब्र से काम लीजिए। आपका बाईपास होने से पहले हम उस मुर्गे पे काबू कर लें। भाई मियाँ, आज रात अंधेरे का फायदा उठाते हुए हम उस मुर्गे को काबू करेंगे। मैडम जल्दी से छुरी दो, इसे दबा करें, मुझे भूख लगी है, और जाके हांडी में मसाला डालो। ये बात करना, मगर आहिस्ता आहिस्ता, दीवारों के भी कान होते हैं। काश 2 मुर्गी होते, एक तुम खाती, एक मैं खाता। एक पे ही गुजारा करो मियाँ, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भी बिल्ली पड़ जाए। खबरदार! जालिम इंसान, एक तो मुर्गी चोरी करता है, ऊपर से उसे जमा करता है। मैं तुझे गोली मार दूंगा। कौन तुम? तुम हमें अपनी नाकामी मौत समझो। मलंगी, चलने से यहाँ गोली मारते। नहीं हरनाम, गोली मत चलाना, गोलियां आ गई कम है। पिस्तौल 3 और गोली 1। आप इसको मेरे हवाले करें, मैं छुरी से इसके 4 टुकड़े कर दूंगा, क्योंकि मैंने पहले भी 4 कत्ल किए हैं। खुदा दा बात है, ताकू भाईजान मलंगी, हरनाम सिंगा ते छुरी मार भरावा, मेरे पास जो कुछ जेवर है ले लो, लेकिन इनको छोड़ दो। हमें जो चाहिए था
हमने ले लिया। मलंगी जी घोड़ों पे काठियां डाल लो, अभी 2 गांव और लूटने हैं। और एक जी आओ मेरे साथ। अबे जोर से किया कर। खुदा का शुक्र है जान बच गई। रोज मना करती थी मत खाया करो चोरी की मुर्गियां, हैं? किसी दिन खुद मारे जाओगे, हैं? डालो हल्दी में मसाला। अब क्या पकाऊं मैं? ओके पे हाँ रुक जाइए, खुदा के वास्ते रुक जाइए। सेठ साहब खुदा के मैं आदमी पाँव पड़ता हूँ, अल्लाह के वास्ते शेखों को हलाल मत कीजिए। अरे खुदा के वास्ते, खुदा का वास्ता है भाई मियाँ, 50 लाख रुपए का मामला है। मेरी बात सुनो, इसे हलाल मत करो, ऑपरेशन करवा के हीरा निकलवा लो, खुदा के वास्ते। यार आपकी इतनी उम्र हो गई है भाई मियाँ, खुदा के लिए मुझे बताइए कभी मुर्गे का ऑपरेशन हुआ है यार? क्यों नहीं, अभी पिछले साल भाईजान ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था। खुदा के लिए सेठ साहब, सेठ साहब खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो, खुदा के वास्ते मेरी बात सुनो। भाईजान मेरे इनाम का 1 लाख रुपया साइड पे कर लीजिएगा। मैंने काफी अरसा हो गया है हजार के नोट नहीं देखे। मुझे तो खैर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो जानता हूं आप किसी की हक तलफी कर ही नहीं सकते। अब मैं दरअसल एक छोटी सी स्पोर्ट्स कार लेना चाहता हूं जिसके दरवाजे ऊपर की तरफ खुलें। और मियाँ मैंने सोच रखा है कि मैं ना डायमंड सेट बनवाऊंगी और एक और डायमंड सेट। और डैडी मैंने न्यूयॉर्क देखना है, आप इससे करें 2 रिटर्न टिकट्स मंगवा दें। और डैडी मैं तो अपनी तमाम कॉलेज की फ्रेंड्स को ना 5 स्टार में डिनर दूंगी। और मैं अपने पप्पी के लिए 50 जोड़े और जूते खरीदूंगी। और अगर कुछ बाकी बच जाए तो वो मुझे दे दीजिएगा। अगर आप सब लोगों ने अपनी अपनी बोलियां बोली हैं तो मैं जौहरी साहब से गुफ्तगू कर लूं? जी बिस्मिल्लाह कीजिए, अल्लाह बरकत डालेगा। वैसे भाईजान मुझे याद रखिएगा, क्योंकि मैंने अपने शेखू की कुर्बानी दे के ये डायमंड बरामद किया है। ये इतना बड़ा हीरा आपका है? बस जी मैंने कभी गरूर नहीं किया, अल्लाह का माल है, उसने दिया है बस। अच्छा तो ये हीरा आपका है? जी हाँ मेरा है, इस खाकसार का है। क्या डिमांड है आपकी? देखिए जी इंटरनेशनल मार्केट में तो इस वक्त मेरा ख्याल है कोई 40-45 लाख रुपए का चल रहा है, लेकिन आज से 15 साल पहले मैंने ये तकरीबन कोई 20 लाख रुपए का लिया था। अब तो इसके रेट बढ़ गए काफी। कुछ ज्यादा नहीं मांग लिया? नहीं तो आप चले 50,000 रुपए कम दे दीजिए। अभी भी बहुत ज्यादा है। और चले जनाब आप ऐसे करें, कोई लाख रुपया कम कर दें, बस। अब पागल हो गए, अभी भी बहुत ज्यादा। भाई साहब मेरा मतलब आप 2 लाख रुपए कम कर दें। अब देखें ना 2 लाख रुपए से कम तो मेरा। अच्छा आप बताएं आप क्या देना चाहते हैं? मैं इस हीरे का आपको 55 रुपए देता हूं। भाई साहब ये हीरा है, जराबे नहीं है। मेरा ख्याल है आप एक आंख वाली ऐनक से देख रहे हैं, 2 आंख वाले से देखें। इसके नंबर चेक कराएं मेरा ख्याल। मेरी नजर तो ठीक है, आप सब घर वाले अपनी नजर का इलाज कराइए, क्योंकि ये हीरा नहीं शीशे का नगीना है जो फुटपाथों पे आम मिलता है। ये तो मैंने 5 लाख रुपए का लिया था। भाईजान शट अप। आपने कभी भी कोई कारोबार ढंग से किया है? मेरा शेखू भी सेवा करवा दिया। बकवास मत करें। मैंने 5 लाख रुपए का लिया था। और मेरा मशवरा यह है कि आप इसे बेचने की कोशिश भी ना कीजिएगा। छोड़ दो गिरने दो।